Namaste. Today we are going to study the first point of Vaishya Kalpana, that history and chronological development of Vaishya Kalpana and concept of Aushadha and Veshaja. So here at first, what are the contents today we are going to study? The contents are: what is Vaishya Kalpana, concept of Aushadha and Veshaja, history or evolution of Vaishya Kalpana, chronological development of Vaishya Kalpana, and studying all these points, what is the conclusion we can take from the Vaishya Kalpana? So, at first, we learn what Vaishya Kalpana is. Vaishya Kalpana is made up of two words. One is Vaishya and other is Kalpana. So, at first, we'll study what is Vaishya. Vaishadyam, Beshajam, Eva iti. According to the Shabdakalpadruma, Vaishadyam, Beshajam, Eva iti. Vaishajya is Beshaja. According to the Amarakosha, Vaishajya is Aushada. According to the Vaidyaka Ratnamala, Vaishajyam, Beshajam cha Ayudravyam, Agadam, Aushadam. According to the Vaidyaka Ratnamala, Vaishajya is Beshaja. It is a Ayudravyaha, which is beneficial to the Ayu or which gives Ayu. It is also called as Agada and Aushada. According to the Charaka Sutrasthana, Tadeva Yuktam Vaishajyam Yat Arogyaya Kalpate. That which gives Arogya to the person is Vaishajya. It gives आरोग्य by bringing the समत्व in the दोषा. जो आरोग्य को देता है वो वैषज्य है. आरोग्य कैसे देता है? by doing the or bringing the समत्व in the दोषा. दोष जो वैषम्य हो जाता है, जो विकृत हो जाता है, उसको समत्व में लाने से हमको आरोग्य मिलता है. जो द्रव्य वो आरोग्य को लाता है या समत्व को लाता है, उसको वैषज्य बोलते हैं. रोग भयम जयति इति बेशजम. तो बेशज और वैषज्य दोनों एक ही है. शब्दकल्प ध्रुव में और एक मिलता है. बेशज मतलब और एक निरुक्ति और एक अर्थ मिलता है बेशज के लिए. वो क्या है? रोग भयम जयति इति बेशजम. रोग भयम जयति इति बेशजम. द सब्सटेंस विच wins over the fear of the disease. The substance which conquers the fear of disease. मतलब क्या है? जो द्रव्य है जो डिसीज या रोग की भय को जीतता है वही वैषज्य है. So next is Aushadha and Veshaja. We knew that in the previous shloka we came to know that Aushadha and Veshaja are synonyms. So here we are going to understand little deeper concept about the Aushadha. Osho nama rasaha. So asyam diyate yat tad oshadihi. Oshat arogyam adatte tasmat oshadihi औषधः. According to the काश्यप संहिता किलस्थाना औषधि का डेफिनेशन देखेंगे. ओशो नाम रसः. ओशो मीन्स रसः. तो अस्याम दीयते यत् तद् औषधिः. जिसमें रस होता है वो औषधि है. जो द्रव्य में रस होता है वो औषधि है. द सब्सटेंस विच हैज रस इन इट इज औषधिः. ओषात् आरोग्यम आदत्. से हमको आरोग्य मिलता है. ओस से हमको आरोग्य मिलता है. ओस gives आरोग्य to us. Hence, ओषधिः is called as औषधः. Hence, ओषधि is called as औषध द्रव्य. So, in the previous slide also we came to know that औषध and Veshaja are same or synonymous. However, there is a slight difference between these two terminologies. What is that difference? What are the difference? We are going to
study in this table. Aushadha, to consider a dravya as a aushadha, there is a compulsion of rasa. A substance to be called as औषधा, it should have rasa in it. मतलब क्या है, जिसको औषध बोलते हैं उसमें रस होना कंपलसरी है, लेकिन भेषज क्या है, देर इज नो कंपल्शन ऑफ रसा. Any substance we can consider it as a भेषज, but however there is no any compulsion that it should have rasa in it. Next, all the dravyas which is available on the earth are considered as aushadha. Bheshaja, the formulations which is prepared from the drugs is considered as a भेषजा. ये औषध मतलब जो भूमि के ऊपर जो भी द्रव्य मिलते हैं उसमें रस हो तो उसको हम औषध कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन भेषज मतलब क्या है, जो द्रव्य मिलता है उसको हम प्रिपेयर करेंगे तो मेडिसिन फॉर्म के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो भेषज हो जाता है. औषध, इट इज नोन बाय both the common man and the physician. But however, Beshaja it is known by the bishop, hence it is called Beshaja. The Aushadha is limited to the treatment aspect. चिकित्सा कर्म के लिए जो द्रव्य उपयोग करते हैं उसको औषध बोलते हैं. वैसे ही भेषज क्या है, इट इज यूज्ड एज बोथ आहार द्रव्य एंड चिकित्सा द्रव्य. औषध, the rasa is compulsory. Hence, if we need something called aushadha, it is in the form of a dravya. Whereas Beshaja, adravyas also we can consider it as a Beshaja, like Homa, Manidharana. Manidharana is actually dravya, but rasa is not there. Then Tirtha Yatra Gamana, Bali, Upavasa, all these can be considered as Beshaja. So these are the difference between the Aushadha and Beshaja. चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित्त, प्रशमन, प्रकृति स्थापन, हित are different synonyms of भेषज. So earlier we came to know that vaishajya, भेषज, औषध are synonyms. Few more additions are we are going to study here. Chikitsita, it is a synonym of भेषज or vaishajya. Chikitsita means what? It is a method of treatment. Vyadhihara, the substance which cures the disease. Vyadhihara मतलब क्या है, द्रव्य जो डिसीज को क्योर करता है. पथ्य, पथ्य means पते हितः, बेनिफिशियल टू द पता. साधन, साधना मतलब इंस्ट्रूमेंट है, चिकित्सा कर्म के लिए जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं उसको साधन बोलते हैं. औषध, which cures the disease and which gives arogya to the person. Prayaschitta, prayaschitta, atonement or redressing of the disease or the cause of the disease. It is a adravya bhuta chikitsa, adravya chikitsa. मतलब क्या है, प्रायश्चित करना. कुछ कर्म किया है वो गलत हुआ है, इसके लिए प्रायश्चित करना मतलब रीएड्रेसिंग हो जाता है. ओके. नेक्स्ट, और रिडम्पशन भी बोल सकते हैं कि पहले किया है वो कर्म को निकालने के लिए जो करते हैं ना, बैड कर्मास आर रिडीम्ड हियर. सो नेक्स्ट इज प्रशमना. प्रशमना इज दैट विच सबसाइड्स द डिसीज. प्रकृति स्थापना, प्रकृति स्थापना मतलब क्या है, प्रकृति को स्थापन करना. प्रकृति को स्थापन करने के लिए क्या चाहिए, हमको दोषा को नॉर्मलसी में लाना है. दोषा को नॉर्मलसी में लाने के लिए जो द्रव्य प्रयोग करते हैं उसको प्रकृति स्थापना और कर्म को प्रकृति स्थापना बोलते हैं. हिता, इट इज बेनिफिशियल टू द बॉडी, द सब्सटेंस विच इज बेनिफिशियल टू द बॉडी. सो वी अंडरस्टूड वैषज्य, भेषज एंड औषध कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज कल्पना मीन. कल्पना मतलब क्या है, कल्प्यते, विधीयते, असौ विधिः. अकॉर्डिंग टू द शब्द कल्पद्रुमा, कल्प्यते, विधीयते, असौ विधिः. मतलब कल्पना इज द विधि, एक विधान है. विधान और विधि, प्रोसेस और द मेथड विच इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन. प्रोसेस और द मेथड मीन्स व्हाट. प्रोसेस मतलब क्या है, विधान मतलब क्या है, विधि मतलब क्या है. जैसे
किसी भी द्रव्य को मेडिसिन को बनाने के लिए किसी द्रव्य को वी हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं, हीट करते हैं, ड्राई करते हैं, बॉयल करते हैं, फ्राई करते हैं। ऑल दीज कंसिडर्ड एज द प्रोसेस और द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। प्रकल्पनम संस्करणमिति। प्रकल्पना इज नथिंग बट द सॉरी अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, प्रकल्पना इज संस्करण। संस्करण मतलब क्या है? संस्करणो ही गुणांतर दानम। संस्करणो ही गुणांतर दान। संस्कार मतलब द एफर्ट विच वी टेक टू चेंज और टू ब्रिंग गुण इन ए द्रव्य। किसी द्रव्य को गुण का मॉडिफाई करना या गुण का एडिशन करना या निकालना, इस सब को संस्कार बोलते हैं। प्रकल्पना मतलब संस्कार। जैसे क्या संस्कार हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन के लिए? अग्नि संस्कार, जल संस्कार, आतप संस्कार। दीज आर द संस्कार विच वी डू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। अग्नि संस्कार मतलब क्या होता है? जो अग्नि का प्रयोग करके द्रव्य में चेंजेस करना, जैसे द्रव्य को हीट करना, बॉईल करना, फ्राई करना होता है। जल संस्कार और जल संस्करण। जल संस्करण is with the help of jala we are doing the samskarana or samskara, that is washing the drug, soaking a drug in the water। आतप संस्कार। आतप मतलब सूर्य का धूप, धूप में सुखाना, that is drying under the sun is considered under the आतप संस्करण। next is कल्पनम योजनम इत्यर्थः। according to the Aruna Datta, कल्पनम योजनम इत्यर्थः। कल्पना is the योजना or plan or strategy which is used for the preparation of the medicine। किसी द्रव्य को बनाने के लिए उसको पहले प्लान करना पड़ता है। क्या द्रव्य बनाएंगे, कितना लेंगे, कितनी फायरवुड चाहिए, कितना लेबर चाहिए, सब प्लान करने को कल्पना बोलते हैं। So next is what is वैषज्य कल्पना। वैषज्यानां कल्पना इति वैषज्य कल्पना। It is a science which deals about the preparation of the different medicines। तो हमने वैषज्य मतलब क्या समझ लिया, अभी कल्पना मतलब क्या समझ लिया। दोनों मिला के वैषज्य कल्पना होता है, जहां वैषज्य का निर्माण करने के लिए जो प्रोसेस, जो मेथड सभी सीखते हैं, उस साइंस को वैषज्य कल्पना बोलते हैं। तो अभी वैषज्य मतलब क्या है, कल्पना मतलब क्या है, वैषज्य कल्पना टुगेदर क्या है, सीख लिया है। अभी हम लोगों को क्यों वैषज्य कल्पना पढ़ना चाहिए, उसका प्रयोग क्या है, देखेंगे। तो अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभूतस्य अल्पकर्मतां कुर्यात् संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्तिभिः। अकॉर्डिंग टू द चरका, वैषज्य कल्पना क्यों पढ़ना चाहिए? अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभूतस्य अल्पकर्मतां मतलब क्या है? हमारे पास अल्प द्रव्य होते भी हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं या फायदा देने वाले मेडिसिन बना सकते हैं। मीन्स इफ वी हैव द लेस रिसोर्सेस वी कैन अटेन मोर बेनिफिट, दैट इज महाअर्थत्वम। वी कैन अटेन मोर थेरेपेटिक वैल्यूज फ्रॉम द even the lesser resources if we have the knowledge of वैषज्य कल्पना। प्रभूतस्य अल्पकर्मता, similarly in a reverse order, that is if we have the lots of resources but we need less therapeutic efficacy of that drug, then also we can take the therapeutic efficacy with the larger quantity of drug, but we can take out the little therapeutic efficacy from that drug. It is rarely implemented, but we should know that if we have the knowledge of Vaishajya Kalpana, with the lesser resources, more therapeutic efficacy, more drugs, lesser therapeutic efficacy, both can be attained. Okay, so how we can attain all these things? By Kuryat, Samyoga, Vishlesha, Kala, Samskara, Yuktibihi. Means if we study the Vaishajya Kalpana, we can attain whatever the desired therapeutic efficacy
with the help of samyoga, means by doing the samyoga of the dravya, combination of the dravya, by visklesha, by separation of the drug, by kala. काला मतलब क्या है? एक काल तक हम लोगों को वेट करना. यूसेज ऑफ काला मीन्स व्हाट? वेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड until the drug become potent. Okay, to we have to wait to drug become potent. Okay, so the waiting period is kala. नेक्स्ट इज संस्कार. संस्कार, संस्करण मतलब क्या है हमने पहले समझा है. वही संस्कार, किसी भी एफर्ट को करना, द्रव्य का गुण में बदलाव लाने का जो प्रोसेस होता है उसको संस्कार बोलते हैं. युक्ति, युक्ति मतलब अपना अपने बुद्धि से हम लोग मेडिसिन की थेरेपेटिक एफिकेसी को या थेरेपेटिक वैल्यू को चेंज करते हैं जो हमारे बुद्धि से. ये सब हम लोगों को चाहिए when we are practicing Ayurveda, because in the Ayurveda we can't give a single set of medicine to every other person. We have to change the drug or the formulation according to the Prakriti, according to his Agni, according to the Roga Avastha, Bala. We have to consider all these. Hence, we have to study the Vaishajya Kalpana so that we can modify the drug or the formulation as per the desired condition. So collectively, with the help of Vaishajya Kalpana, we can add on, we can change the guna of the dravya. Okay, so along with that, we can increase the potency of the drug, improve the shelf life of the drug, increase the taste of the drug, and improve the color or the presentation of the formulation. Also, it can, the taste and the odor and the color of the formulation can be altered with the help of knowledge of Vaishajya Kalpana. Hence, one should study Vaishajya Kalpana. Next point is history of the Vaishajya Kalpana. तो हमारे वैशज्य कल्पना का हिस्ट्री क्या है उसको यहाँ हम लोग पढ़ेंगे. ओके, so whenever we study history, usually we study history from the human being evolution or the human species evolution. So whenever wherever the human evolution has started, human beings had an never ending quest. मतलब जो खत्म ही नहीं होता है, वैसा एक डिजायर या आशा होता है कि हम लोगों को अच्छे से हेल्दी रहना है, जो भी डिसीज आएगा उसको क्यूर करने की ताकत रहना है. वो सब करेक्टिव प्रोसीजर को या डिफरेंट प्रोसीजर को ढूंढते रहे. Man has tried various corrective procedures in his never ending quest to cure his ills and maintain his health. मतलब क्या है, जो हिस्ट्री कैसे आता है, जो ह्यूमन को अपनी हेल्थ को, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और डिसीज को प्रशमन करने के लिए जो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर किया है. ओके, तो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर में एक आता है युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा. ओके, वेयर ही यूज युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में उसने यूज किया है हर्ब्स, मतलब प्लांट के प्रोडक्ट को यूज किया, एनिमल प्रोडक्ट को यूज किया, मिनरल्स को यूज किया टू ट्रीट द डिसीज. ओके, ऐसे हमारे हिस्ट्री में सभी द्रव्यों को वो लोग इस्तेमाल करते गए और उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी को समझते गए. How the evolution of Vaishajya Kalpana started? Usually, whenever evolution of human being comes, always it is from the primitive era or the Stone Age. पिछले का टाइम का स्टोन एज होता है. स्टोन एज मैन क्या करता था? वो यूजुअली अपने साथियों के साथ अपने साथियों के साथ और दूसरे एनिमल्स के साथ में रहते थे. तो इनिशियली उसने क्या किया, जो उसको भूख मिटाने के लिए दूसरे प्राणियों को देखकर वो भी ग्रास मतलब तृण को खाने लगा, ट्यूबर्स को खाने लगा, फ्रूट्स को खाने लगा, प्लांट्स को खाने लगा अपने भूख को मिटाने के लिए. बाद में उसने ऐसे ही खाते खाते एक दिन उसको पता चला
कि ऐसे खाने से अपना कुछ बीमारी भी या जुकाम भी कम हो रहा है। So he slowly learned about their medicinal values as well. Okay, and as a result of his experience, ऐसे भूख मिटाने के लिए खाया, बाद में उसको मेडिसिनल वैल्यू पता चला, स्लोली उसको वो अपने ज्ञान को विस्तार करते गया, मोर कल्चर्ड हो गया, बहुत कल्चर्ड और इंटेलिजेंट हो गया, और उसको पता चलने लगा कि ये द्रव्य से हमको ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलता है। तो वो सब मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलता है, उसको कैसे खाना है, कैसे पकाना है, वो सब उसको स्लोली पता चला। दिस इंटेलिजेंस और दिस एक्सपीरियंस इवेंचुअली लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ वैशज्य कल्पना। वो सब पता चलने के बाद वो सबके ज्ञान से वैशज्य कल्पना का उगम हुआ। In Ayurveda Shastra, we don't find a branch named वैशज्य कल्पना separately. हमारे आयुर्वेद में वैशज्य कल्पना नाम का कोई सेपरेट आयुर्वेद का ब्रांच नहीं है। However, ये सभी जगह पर स्कैटर्ड, मतलब इधर उधर सभी जगह पर मिलता है। सभी 8 अंगों में वैशज्य कल्पना का प्रेजेंस है। ओके, इन द लेटर फेसेस, जो सभी स्कैटर्ड, बाद में जो सभी जगह पर आठों अंगों में जो भी ज्ञान है वैशज्य कल्पना का, उस सबको एक जगह पर लाकर उस सब्जेक्ट को वैशज्य कल्पना नाम दिया गया है। ओके, so to refer वैशज्य कल्पना, we have one grantha that is called Sharangadhara Samhita, which is written by Acharya Sharangadhara. Okay, it is mainly or majorly discusses, or it has the all the references for the preparation of the medicine. जो भी प्रोसेस है, जो भी मेडिसिन कैसे बनाना है, वो सभी शारंगधर संहिता में मिलता है। शारंगधर संहिता is considered as a primary grantha for the वैशज्य कल्पना. So next is chronological development of वैशज्य कल्पना को सीखेंगे हम लोग और पढ़ेंगे और जानेंगे। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलते वक्त क्या होता है? पहला पीरियड कौन सा आता है? प्रारंभिक काल आता है, और प्रिमिटिव एरा बोलते हैं उसको। ओके, प्रारंभिक काल, जैसे ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन हुआ, उसमें प्रारंभिक काल कौन सा है, उसको हम लोग प्रिमिटिव एरा बोलते हैं। इसको हम लोग शिलायुग और स्टोन एज भी बोलते हैं। In the primitive era, there is no documented proof of origin and growth of वैशज्य कल्पना। ओके, ये प्रिमिटिव एरा और शिलायुग में कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है कि वैशज्य कल्पना का प्रयोग किया है या उसका उत्पत्ति हुआ है, ओरिजिन हुआ, ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जब हम लोग वेद को पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि वेद में ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, चिकित्सा क्रम का प्रयोग है। मतलब क्या है? अगर वेद काल में चिकित्सा क्रम का प्रयोग है तो शिलायुग में भी थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल था, ऐसे हमको वेद को पढ़ने से समझ में आता है। However, the use of various herbs in treatment was certainly present during the primitive era, as evidenced by Vedic literature. Okay, वेद लिटरेचर को पढ़ने से हमको पता चलता है कि प्रिमिटिव एरा और प्रारंभिक काल में द्रव्यों के ज्ञान था, ऐसे हमको वेद को पढ़ने से पता चलता है। नेक्स्ट इज वेद काल और Vedic period. In the Vedic period, it is the first written document which is available regarding the वैशज्य कल्पना. Okay, जो भी लिखित रूप में मिलता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिलता है, वो वेद काल से मिलता है। देयर आर न्यूमरस इंस्टेंस, बहुत जगहों पर वेद के कालों के ग्रंथों में, वेदों में हमको बहुत सारे औषध द्रव्यों के और आहार द्रव्यों के रेफरेंस मिलता है, उसका इस्तेमाल किया हुआ, चिकित्सा किया, बहुत सारे हमको रेफरेंसेस मिलते हैं। तो हमको ऋग्वेद में क्या ज्ञान मिलता है देखेंगे। ऋग्वेद में बिशक एंड औषधा, these are the terms were coined during the Rigveda period.
बिशक और औषध पहली बार इस्तेमाल किया गया ऋग्वेद के पीरियड में। ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस व्हिच वर यूज्ड इन द ऋग्वेद पीरियड आर पिप्पली, सेमल, बिबीतक, प्रमत्य, अश्वत्थ। ये सब ड्रग्स को ऋग्वेद के पीरियड में इस्तेमाल किया गया है। सोमरस को सारे औषधियों के राजा माना जाता है, किंग ऑफ ऑल द औषधास। एंड इसको बहुत टाइम, बहुत बार वेदा में इसका प्रयोग किया गया है। बिशप, वैद्य, औषध, ये टर्मिनोलॉजी को बहुत साल, सॉरी, बहुत टाइम ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया है। इससे पता चलता है कि देर इज ए particular or the proper treatment modality or the plan of the treatment which was available during that era. Next is Atharva Veda. The use of herbs for the medicinal purpose is highly valued in Atharva Veda. अथर्व वेद में मेडिसिनल द्रव्यों का इस्तेमाल के लिए अपना ही अलग जगह था। इसको वैशज्य वेद और बिशक वेद, इसको बिशक वेदा भी कहते हैं, वैशज्य वेदा भी कहते हैं। एंड इट गेव बर्थ टू आयुर्वेद साइंस, क्योंकि अथर्व वेद से आयुर्वेद का उगम हुआ है। अथर्व आयुर्वेद इज उपवेद ऑफ अथर्व वेद, इसलिए इसको बिशक वेद और वैशज्य वेद कहते हैं। द अथर्व वेद डिफरेंशिएट औषध द्रव्य इनटू 4 क्लासिफिकेशन। सारे औषध द्रव्य के बारे में बताया गया है और औषध द्रव्यों को 4 वेदों में इधर बताया गया है। 2 वेद कौन सा है? अथर्वणी, अंगीरसी, दैवी, मानुषी। डिस्क्रिप्शन अबाउट विद्रधि एंड चिपुद्रु, मतलब क्या है? डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट विद्रधि रोग और चिपुद्रु रोगों के बारे में अथर्व वेद में मिलता है। एंड ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस which are found in this Vedic period are listed. That is Munja, Yava, Prashnaparni, Ashwatha, Apamarga, Plaksha, Khadira, Dava, Negrodha, Laksha, Soma, Vishannaka, Pippali, Darba, Kusha, Gugulu, Kushta। ये सभी ड्रग्स को अथर्व वेद के पीरियड में इस्तेमाल किया गया है। इसका रेफरेंसेस हमको अथर्व वेद में मिलता है। औषध द्रव्यों के अलावा बहुत सारे आहार द्रव्य, आहार कल्पनाओं का प्रयोग भी अथर्व वेद में हमको मिलता है। वो कौन से आहार द्रव्य और आहार कल्पना हमको अथर्व वेद में मिलता है? वो है दान, करम्ब, सक्तु, परिवाप, दधि, अमीक्ष, वादिन, मधु, क्षीर, गोधूम, लाज, आज्य, परिस्कृत, घृत, व्रीहि, माश, मुद्ग, प्रियंगु, श्यामाक, मसूर, नवनीत, ओदन। ये सभी रेफरेंसेस आहार द्रव्य के और आहार कल्पना के हमको अथर्व वेद में मिलता है। अभी नेक्स्ट क्या है? संमित काल। वेद काल, प्रिमिटिव एरा और प्रारंभिक काल के बाद वेद काल में जो भी वैशज्य कल्पना का डेवलपमेंट या प्रयोग हुआ हमने सीखा है। अभी संमित काल में क्या प्रयोग होता है? व्हाट आर द contributions of Samhita to the Vaishajya Kalpana we are going to study here. So in the Samhita Kala, first comes Charaka Samhita. Charaka Samhita is the first book to for the Samhita Kala. It is written by Acharya Charaka. It contains 8 sthanas and 120 chapters. तो वैशज्य कल्पना के लिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? वैशज्य कल्पना में जो भी औषध बनाते हैं वो सभी पंचविध कषाय कल्पना के हेल्प से बनाते हैं। तो इट इज द फर्स्ट बुक टू लिस्ट आउट पंचविध कषाय कल्पना। पंचविध कषाय कल्पना कौन से हैं? स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांटा। इस सब को
पहले बार इस्तेमाल पंचविध कषाय कल्पना के नाम से चरक संहिता मिलता है। पंचविधम कषाय कल्पनमिति तद्यात् चरक सूत्र 4th चैप्टर 7th श्लोका में मिलता है। पंचविध कषाय कल्पना के साथ ही पंचविध कषाय के योनि का भी प्रयोग इस्तेमाल चरक संहिता द्वारा ही हुआ है। पंच कषाय योनय इति मधुर कषायो अम्ल कषायः, मतलब चरक संहिता में हमको 5 कषाय योनियों के बारे में मिलता है। मतलब मधुर कषाय योनि, अम्ल कषाय योनि, तिक्त कषाय योनि, कटु कषाय योनि, कषाय योनि, ये सभी का प्रयोग किया जाता था चरक संहिता के पीरियड, और कषाय योनि के बारे में बताया गया है चरक संहिता में। इसके अलावा चरक संहिता में बहुत सारे चूर्णों का वटी, अवलेह, स्नेह, आसवारिष्टा, मध्य कल्पना, नस्य कल्पना, धूमपान, नेत्र क्रिया, लेप, बस्ती, ऑल आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन चरक संहिता। सिर्फ चिकित्सा क्रम में जो प्रयोग होते हैं उसको ही नहीं बताया है, उसके साथ ही साथ बहुत सारे आहार कल्पनाओं का प्रयोग भी चरक संहिता में मिलता है। दैट इज यवागु, चरक सूत्र 2nd चैप्टर में ही मिलता है हमको यवागु को कैसे बनाते हैं। देयर आर 28 टाइप्स ऑफ यवागु व्हिच आर एक्सप्लेन्ड इन चरक संहिता 2nd चैप्टर फॉर द डिफरेंट डिसीज कंडीशन। देन पेय, मंड, यूष, तक्र, दधि, ओदन, आपूप, शशकुली, लाजा का प्रयोग भी चरक संहिता के पीरियड में और चरक संहिता के में हमको सारे रेफरेंस मिलते हैं। इन सारे रेफरेंस से हमको पता चलता है कि चरक संहिता के पीरियड में कितना विस्तार से वैषज्य कल्पना का प्रयोग होता था। अभी हम जानेंगे सुश्रुत संहिता में वैषज्य कल्पना के लिए क्या, सुश्रुत संहिता द्वारा वैषज्य कल्पना को क्या क्या कंट्रीब्यूशन मिला। सुश्रुत संहिता किसने लिखा है? आचार्य और महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, सुश्रुत जी ने लिखा है। हैज 6 स्थानास एंड 180 चैप्टर। सुश्रुत संहिता इन सुश्रुत आचार्य जी ने कषाय, पंचविध कषाय कल्पना जो चरक जी ने बताया है उसमें चूर्ण कल्पना और क्षीर कल्पना को ऐड किया है। He has placed चूर्ण कल्पना and क्षीर कल्पना in the कषाय कल्पना and he has skipped the पांटा कल्पना in the पंचविध कषाय कल्पना explained by Charakacharya. But however, he has added चूर्ण कल्पना and क्षीर कल्पना and explained it as a 6 kashaya kalpanas. 6 kashaya kalpanas which is explained by Acharya Sushruta are Kshira, Swarasa, Kalka, Kashaya, Shruta, Shita, Tataiva Churnam. Kshiram, Rasaha, Kalkamato, Kashayaha, Shrutascha, Shitascha, Tataiva Churnam. Sushruta Acharya is the person to explain क्षार प्रिपरेशन मेथड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। क्षार का प्रयोग मतलब कैसे क्षार को बनाते हैं और कैसे क्षार का इस्तेमाल होता है पानीय रूप में और प्रतिसारण रूप में, मतलब इंटरनली एंड एक्सटर्नल यूसेज कैसे होता है, ये सब डिटेल में आचार्य सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता में एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ इन्होंने तैल, चूर्ण, घृत, अवलेह, आयुष्कृति, क्षार सूत्र को इन डिटेल एक्सप्लेनेशन सुश्रुत संहिता में मिलता है। मद्य, आसवारिष्ट, धूमपान, नस्य का एंड नेत्र रोग में जो भी नेत्र क्रियाकल्प का प्रयोग होता है उसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन उत्तर तंत्र में मिलता है। बस्ती कल्पना इन डिटेल। देन इसके साथ ही साथ आहार कल्पना में पेय, मंड, विलेपी, यवागु, यूष, रसाल, रागषाढ़व, मांसरस, वेशावर एंड सो ऑन एक्सप्लेन्ड इन आहार कल्पना अंडर कृतान्न वर्ग। कृतान्न वर्ग सुश्रुत सूत्र स्थान में कृतान्न वर्ग का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है, कैसे हम आहार द्रव्यों के डिफरेंट प्रिपरेशन को
बना सकते हैं। इससे हमको वैशेज्य कल्पना में पथ्य का कॉन्सेप्ट को भी मिलता है, चिकित्सा के कॉन्सेप्ट भी सुश्रुत संहिता में इन डिटेल मिलता है। नेक्स्ट कौन सा ग्रंथ आता है सुश्रुत संहिता के बाद में? अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह is written by Vriddha Vagbata and it has 6 sthanas and 150 chapters. He has explained Panchavidha Kashaya Kalpana similar to that of Charaka, explained many Ahara Kalpanas and Aushadha Kalpanas which we have discussed earlier. He has followed more of Charaka's uh, references. And he has used even the Sushrutas references also, but more Charaka references we can see in Ashtanga Sangraha. Next is Ashtanga Hridaya. It is written by Laghu Vagbata, has 6 sthanas, 120 chapters. जो चरक का पंचविध कॉन्सेप्ट कषाय कल्पना का कॉन्सेप्ट है उसको अष्टांग हृदय जी ने भी अष्टांग हृदय में भी वही रेफरेंसेस मिलते हैं, उसको ही लघु वाग्भट जी ने माना है। एंड ही हैज आल्सो एक्सप्लेन्ड मेनी आहार एंड औषध कल्पना इन अष्टांग हृदय। ये सब बृहत्त्रयी का कंट्रीब्यूशन है वैशज्य कल्पना के डेवलपमेंट में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि लघुत्रयी में कौन सा भी कंट्रीब्यूशन है क्या वैशज्य कल्पना के डेवलपमेंट के लिए, अब देखेंगे। लघुत्रयी में कौन से आते हैं? भाव प्रकाश, माधव निदान, शारंगधर संहिता। माधव निदान रोग निदान के लिए ज्यादा फायदेमंद ग्रंथ है। भाव प्रकाश द्रव्य गुण के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ग्रंथ है। शारंगधर संहिता जो है हमारे वैशज्य कल्पना के लिए ज्यादातर प्रयोग किया करने वाला ग्रंथ है। मेजरली इट इज डेडिकेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। ओके, so this book is belongs to the later part of the 13th century. It is written by Acharya Sharangadhara, has 3 khandas, खंड बोलते हैं, 3 khandas, 32 chapters in it. This is considered as a important referral book for the वैशज्य कल्पना। वो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अभी नेक्स्ट इसका कंट्रीब्यूशन क्या है वैशज्य कल्पना के डेवलपमेंट में, हम लोग इस चार्ट और इस स्लाइड में देखेंगे। शारंगधर संहिता में 3 खंड है, पूर्व खंड, मध्यम खंड एंड उत्तर खंड। पूर्व खंड में क्या कंट्रीब्यूशन है देखेंगे। इनिशियल 2 चैप्टर्स आर रिलेटेड विद द वैशज्य कल्पना। पहले के 2 चैप्टर्स है वो वैशज्य कल्पना के बारे में है। वो कौन से हैं? मान परिभाषा अध्याय एंड वैशज्य आख्यान का अध्याय। इस दो चैप्टर्स में हमको वैशज्य कल्पना के जो मान का प्रयोग होता है, जो वैशज्य का विवरण मिलता है, वो सबका कंट्रीब्यूशन पूर्व खंड से हुआ है। मध्यम खंड से क्या कंट्रीब्यूशन मिलता है? मध्यम खंड से there are 12 chapters in the Madhyama Khanda which is used for the preparation and the processing of the medicinal, herbal and the mineral drugs as well. कौन से चैप्टर्स कौन से है? पहला चैप्टर है स्वरस कल्पना अध्याय। स्वरस कल्पना अध्याय में इन डिटेल स्वरस का प्रिपरेशन और डिफरेंट स्वरसों के एग्जाम्पल्स दिया है और उसका किधर इस्तेमाल कर सकेंगे वो भी बताया गया है। Similarly, in the Kvata Kalpana, many Kvatas are explained and its utilizations also explained. Next is Panta Kalpana, Hima Kalpana Adhyaya, Kalpa Kalpana Adhyaya, Churna Kalpana Adhyaya, Gutika Kalpana Adhyaya, Avalena Kalpana Adhyaya, Sneha Kalpana Adhyaya, Sandana Kalpana Adhyaya, धातु शोधन मारणाध्याय, रस शोधन मारणाध्याय। पहले 10 ग्रंथों में पहले 10 चैप्टर्स में मध्यम खंड का ज्यादातर इस्तेमाल वैशज्य कल्पना के मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए होता है और द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन के लिए ही इस चैप्टर को पहले 10 अध्याय हम लोग कंसिडर करते हैं। स्वरस में स्वरस के बारे में इन डिटेल है, वैसे ही क्वात में क्वात का, पांट में पांट का, वैसे ही अदर चैप्टर्स में भी दिया गया है। नेक्स्ट कौन सा है?
उत्तराखंड, पूर्व खंड हो गया, मध्यम खंड हो गया, अभी उत्तराखंड। उत्तराखंड में 13 चैप्टर थे, उसमें 11th चैप्टर है ना, वो हमारे वैशज्य कल्पना का डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। 11th chapter deals in detail about the lepa. The name of the chapter is Pralepana Adhyaya. This is the contribution of the Sharangadhara Samhita to the development of Vaishajya Kalpana. Next is Chakradatta. Chakradatta is written by Chakrapani Datta. It belongs to the 11th century. This is the first book where we get internal usage of परपटी कल्पना इन द ग्रहणी चिकित्सा। चक्रदत्ता का कंट्रीब्यूशन क्या है, जो पहले बताया गया उसका अलावा कौन सा कंट्रीब्यूशन है कि परपटी कल्पना का पहली बार इस्तेमाल चक्रदत्त द्वारा हुआ है। उसको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चक्रदत्त में मिलता है। ग्रहणी रोग को चिकित्सा करने के लिए परपटी कल्पना का जो आभ्यंतर प्रयोग होता है उसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको चक्रदत्त द्वारा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल प्रिपरेशन को, आहार द्रव्यों को चक्रदत्त जी ने हमको चक्रदत्त बुक में मिलता है। चक्रदत्त के अलावा बहुत सारे बुक्स और ग्रंथास हैं, वो वैशज्य कल्पना के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो कौन से हैं? योग रत्नाकर है, वैशज्य रत्नावली है, सिद्ध भेषज मणिमाला है, रसतंत्र सार प्रयोग संग्रह है, भारत वैशज्य रत्नाकर है, सिद्ध योग संग्रह है, आयुर्वेद सार संग्रह। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ है जो वैशज्य कल्पना के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन सारे ग्रंथों में हमको चूर्ण कल्पना, क्वाथ कल्पना, आसवा, रिष्टा, घृता, तैला, अवलेहा, बहुत सारे फॉर्मुलेशन का इन डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको इन सारे ग्रंथ में मिलता है। Among these, वैशज्य रत्नावली is the grantha which is majorly used for the preparation of the formulation and as well as to understand the indication of that formulation. तो वैशज्य रत्नावली के बारे में या वैशज्य रत्नावली में क्या कंट्रीब्यूशन मिलता है हम यहाँ देखेंगे। वैशज्य रत्नावली इज रिटन बाय गोविंद दास सेन, belongs to the later part of the 18th century. It has 106 chapters. Each chapter 106 चैप्टर वैशज्य रत्नावली में है। Each chapter deals with the diseases and formulations which are used in that diseases. मतलब क्या है, सारे चैप्टरों 100 चैप्टर में भी जो ज्यादातर चैप्टर डिसीज के बारे में ही है, जैसे आमवात रोग अध्याय, पांडु रोग अध्याय ऐसे नाम से मिलता है। साथ ही साथ वो रोग को निवारण करने के लिए और रोग को क्यूर करने के लिए कौन से फॉर्मुलेशन चाहिए उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको वैशज्य रत्नावली में मिलता है। रोग और रोग में प्रयोग करने वाले फॉर्मुलेशन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको वैशज्य रत्नावली में मिलता है। इसके साथ ही साथ में हमको परिभाषा प्रकरण में परिभाषा के ज्ञान मिलता है और स्वरस से आसवारिष्ट तक सब फॉर्मुलेशन को इन डिटेल कैसे बनाया जाता है हमको वैशज्य रत्नावली में मिलता है। मूर्छना ऑफ द स्नेह मूर्छना और स्नेह कल्पना कॉन्सेप्ट है, उसमें मूर्छना ऑफ स्नेह को इन डिटेल में पहले बार एक्सप्लेनेशन हमको वैशज्य रत्नावली में मिलता है। So this is the contribution of Vaishajya Ratnavali for the development of Vaishajya Kalpana. So next is Ayurveda Formulary of India. Ayurveda Formulary of India AFI, ये एक बुक है। It is a book which is published by Government of India. इधर एक फोटो डाला है, ऐसे दिखता है, वो उसको आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। जो सारे स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन सभी जगह मिलते हैं उसको सभी फॉर्मुलेशन और ड्रग्स को इस बुक में कंपाइल्ड किया गया है। स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशंस इन द क्लासिकल आयुर्वेदा बुक आर कंपाइल्ड हियर इन दिस बुक। ओके, अब तक 3 पार्ट में इस बुक को पब्लिश किया गया है। पार्ट 1
1976 में पब्लिश किया है। इसमें 444 मोनोग्राफ्स है। मोनोग्राफ्स मतलब क्या है? एक डिटेल इंफॉर्मेशन और डिटेल रिटर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ए ड्रग, मतलब 44 ड्रग और फॉर्मुलेशन और ट्रीटमेंट मोडालिटी को इधर फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। Second part is published in 2000. It has 192 monographs, and the third part is published in the year 2011 and has 350 monographs. अभी ये कोई क्यों चाहिए था हमको? वैशिष्ट्य रत्नावली था, दूसरा दूसरा ग्रंथ था, लेकिन द एम ऑफ द एएफआई क्या है? पर्पस ऑफ द एएफआई क्या है? टू स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी, मतलब क्या है? अभी क्वालिटी में स्टैंडर्डाइज को करना या क्वालिटी का स्टैंडर्ड फिक्स करना एएफआई का एक एम है। सिमिलरली एफिकेसी ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन, फर्स्ट इज standards for the quality of the ayurvedic medicine, second one is efficacy of the ayurvedic medicine, third is the safety of the ayurvedic medicine। ये सब करने से क्या होता है? तो we can ayurvedic formulation can meet the legal requirement। एएफआई का एम क्या है? स्टैंडर्ड को बढ़ाना, आयुर्वेद के मेडिसिन के क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, आयुर्वेद के मेडिसिन के एफिकेसी को बढ़ाना। सिमिलरली टू increase the safety of Ayurveda medicine, so that all the classical preparations, whatever we have, it should meet the legal requirement so that we can globalize the Ayurveda formulation। हमको सारे जगत में, विश्व में विस्तार करने के लिए हमको हमारे मेडिसिन का जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो सबको पास करना है, तभी हम लोग आयुर्वेद को ग्लोबलाइज कर सकते हैं। इसलिए एएफआई का बुक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया गया, पब्लिश किया गया है। तो नेक्स्ट क्या है? तो एएफआई के साथ ही साथ हमारे वैशिष्ट्य कल्पना का डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, हमारे आजादी मिलने के बाद हमारे आयुर्वेद फॉर्मुलेशन में बहुत सारे चेंजेस हुआ है। फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द आयुर्वेद फॉर्मुलेशन। व्हाट आर द चेंजेस व्हिच वी come across after the or the following the independence? We are going to learn now. Many dosage forms like a panakas, malaharas, arkakalpanas are were introduced into the Ayurveda pharmaceutics। मलहरा कल्पना को, पानक कल्पना को, अर्क कल्पना को हमारे आयुर्वेद में ऐड किया गया है। साथ ही साथ मेनी न्यू मशीनरीज वेर इंट्रोड्यूस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। बहुत सारे पहले क्या करते थे? वैद्य लोग ही बनाते थे, बाद में उपचार से बनाया जाता था। तो अभी ज्यादातर आयुर्वेद का मेडिसिन बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, तो हमको विश्व के स्तर में भी लेके जाना है, तो वी हैव टू कट डाउन द लेबर, मैनुअल लेबर, एंड वी हैव टू use some machineries. So new machineries were introduced for the preparation of the Ayurveda medicine. Next is what other changes? Based on the concept of the Vatikalpana, Vatikalpana के concept से ही coated tablets और capsules को भी मैन्युफैक्चर करने लगे आयुर्वेदा कंपनीज, फार्मा कंपनीज कोटेड टैबलेट्स और कैप्सूल्स को भी मैन्युफैक्चर करने लगे। Gels and ointments also added or introduced to the Ayurvedical pharmaceutics based on the Lepa Kalpana concept. Eventually, ये सभी मॉडिफाई करते करते धीरे धीरे फाइनली क्या हुआ? प्रिजर्वेटिव भी आयुर्वेद फार्मास्यूटिक्स में एंटर किया गया है। इवेंचुअली प्रिजर्वेटिव्स आल्सो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मॉडिफाइंग द डिफरेंट डोसेज फॉर्म। जैसे वटी से कैप्सूल बनाया, कोटेड टैबलेट्स बनाया, जल से सॉरी लेप से जल बनाया, मलहर कल्पन से ऑइंटमेंट बनाया, मलहम बनाया। तो क्या हुआ? तो इस सबको बनाते बनाते मॉडिफाई करते करते इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड करना पड़ा। So preservatives also introduced to the Ayurveda. Later, in the later
टू मेक द आयुर्वेदा मेडिसिन मोर अपीलिंग, बहुत अच्छा सुंदर दिखना चाहिए ना। अभी कुछ मेडिसिन को या किसी को आजकल के लोगों को कंज्यूम करने के लिए कुछ अच्छा दिखना चाहिए। पैकेजिंग भी अच्छा करना पड़ा, लेबलिंग भी अच्छा करना पड़ा। तो वो सब भी ऐड हुआ करते-करते। तो न्यू टेक्निक्स ऑफ पैकेजिंग, लेबलिंग आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू द Ayurveda pharmaceutics. These are the changes which happened in the development of Ayurveda following the independence. Next is the conclusion. What are the conclusions we can take from the by studying this history and evolution and chronological development of Vaishajya Kalpana? क्या conclusion मिलता है? Nowadays, pharmaceutical companies are bringing advanced dosage forms of Ayurveda preparations or formulations. They are like granules, syrup, capsules, coated tablets, drops, ointments, balms, liniments, then sprays, hair gels, so on in the market. So pharma companies have brought different advanced dosage forms to the market. So by looking at all these, it can be concluded that Ayurveda has evolved from Panchavidha Kashaya Kalpana to the most advanced dosage forms with the sound classical knowledge and technical knowledge. अब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आयुर्वेद का इवोल्यूशन स्वरस, कल्क, क्वाट, हिम, पांट जैसे पंचविध कषाय कल्पना से स्प्रेस, ग्रैन्यूल्स, कैप्सूल्स, कोटेड टैबलेट ऐसे बहुत सारे एडवांस डोसेज फॉर्म तक आयुर्वेद में वैशिष्ट्य कल्पना का इवोल्यूशन और डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका डेवलपमेंट या अ, ये सब लाने में साउंड क्लासिकल नॉलेज होना और टेक्निकल नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ साउंड क्लासिकल नॉलेज एंड द टेक्निकल नॉलेज, आयुर्वेदा and Vaishajya Kalpana has evolved from the Panchavidha Kashaya Kalpana to the most advanced dosage form. So this is the conclusion we can take from this class. Thank you. I believe you understood this class thoroughly. Thank you very much.